good evening, and a warm welcome to all my guests. We're back here from Parijay Genus with a brand new episode of Greener, Happier Tomorrow, as promised every first and third Saturday of the month. And today is a very interesting session, I guess, for all the environment lovers as well, along with our plant lovers who join us every week whenever we host our Greener, Happier Tomorrow. So, as you all know what Parijay Genus does, we are more than happy to host plant lovers along with us. And today we have our esteemed guests, Mr. Kartar Singh. He's a retired drawing teacher with the Education Department in Chandigarh. And also please welcome our other two guests, Mrs. Rashmi Bhargava. She's the head business operations, DSPE Chandigarh, and Mr. Arpit Bhargava, who's also a manager along with her in Chandigarh as well. All of them are based in Chandigarh. Welcome to our show, our lovely guests. Thank you so much. Thank you. Right. So, as our motto goes from Parijay Genus is that every corner needs a plant. So we believe that, we have to leave a green legacy for our further generations. हमारी आगे की पीढ़ी के लिए हम लोगों को अपना जो भी धरोहर है हमारी जो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो खूबसूरती देते हो, चाहे उनसे हम दवाई लेते हैं, या जो कुछ भी छाया होती है उनसे, फल फूल जो भी हम लोग उनसे पाते हैं, उनको हमें ऐसे ही बरकरार रखना है ताकि हमारी आगे की पीढ़ी को भी हम वही लुत्फ उठाने दें जो हम लोग उनसे इतने सारे सालों में हम लोग लेते आ रहे हैं, उनका फायदा लेते आ रहे हैं, उनसे इतनी सारी खूबियां हमने प्राप्त की है, तो वो हमारे बाकी पीढ़ियों के लिए भी हमको छोड़ जाना है। ऐसा नहीं कि पूरे का पूरा कंक्रीट जंगल बना दें कि पेड़ पौधे ही ना बचें। So we believe in promoting and preserving the green generation, the greenery that is there, the green wealth that is there, to leave a green legacy for our future generations. So let's get on with our show, but a quick guidelines to all our audience, whoever joins us after this as well. Have the slide, please. All right. Much before that, I would still like to introduce myself. I'm Seema Sharif, your host for tonight. And I'm a relationship and emotional intelligence coach. I'm also a content writer by passion. Could we have a screen share, please, Ms. Rashmi? Right. So moving on to our guests, I would like to again introduce Kartar Singh Ji. As you can see, he's a retired drawing teacher from the Education Department. And our next speakers, Mrs. and Mr. Bhargava. And we have a set of guidelines for our audience who would join us that at the end of our session, you could unmute yourself and ask your questions, or you could type your questions in the chat box, starting with introducing your name and your city. And during the session, kindly keep your mics turned off just in order to have a smooth flow of the session. All right. Heading on with this session, are my guests ready? Yes. Okay. My first question to Kartar Singh Ji. Could we have Kartar Singh Ji pinned onto the screen, please? Yeah. Kartar Singh Ji. जी मैडम। आप तो शुरू से शौकीन रहे पेड़ पौधों के, तो लेकिन आपको ये समझ आई कि मुझे पेड़ पौधों के प्रति लगाव है? एक्चुअल मैडम बचपन से जो देखते थे उससे भी काफी चीज में हमें लगता था वही पेड़ प्लांट्स लगाने चाहिए। और जब सर्विस में आए तो जब चंडीगढ़ में ज्वाइन किया तो यहाँ के और मुझे शौक ज्यादा पैदा हुआ क्योंकि यहाँ ग्रीन बढ़ा था जी। तो उससे मैं फिर प्लांट्स की तरफ ज्यादा रुझान हुआ
और लगभग 41 ईयर मेरी जॉब रही है, और उसमें 41 ईयर में मैंने अपने घर को प्लांट से पूरा हरा भरा रखा। जी जी जी, माशाल्लाह। ये चंडीगढ़ की देन भी है, 50% है मेरे प्रति, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसा ना देखता या कोई रिमोट में होता, हो सकता मैं इतना शौक न होता। जी जी, अब सही मुझे बात है। प्लांट्स का बहुत शौक है, और डिफरेंट कुछ मेडिसिन प्लांट भी लगाता हूँ, जी, और फ्लावर का ज्यादा शौक है। फूलों का ज्यादा शौक है आपको। तो बचपन से ही आपको ये शौक रहा है, ऐसा नहीं कि आपको बाद में उसके बारे में जागरूकता हाँ, हुई और तब से शौक? बचपन में देख के लगता था भी मैं भी लगाऊं, लेकिन हमारे जगह नहीं होती थी। जी जी जी। हमारा एरिया ऐसा था जहाँ पर ये सारी चीजें नहीं थी, क्योंकि हम पशु रखते थे, तो अगर हम लगा भी दे तो खा जाते थे, नहीं बात बिल्कुल। बनती नहीं थी, एरिया जी ऐसा था। जी। चंडीगढ़ में आके फिर मैं इसमें बहुत रुचि रखने लगा, और फिर मैं बढ़ाता रहा अपना काम, और मुझे अच्छा भी लगता था, और मेरे काम को देख के पड़ोसी भी खुश होते थे। जी, से मैंने काफी सुना है चंडीगढ़ की खूबसूरती के बारे में, और वहाँ की जो मिट्टी है उसकी बात ही कुछ और है। जैसे मैं तो बैंगलोर से हूँ, लेकिन नहीं, पेड़ पौधे या फूलों की जिन बात कर रहे हैं आप, फूलों के बिल्कुल पौधों ठीक की। है, जी आप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो एक बार आएगा तो उसको प्लांट से लगाव हो ही जाएगा, जी। और जिसको ज्यादा लगाव है वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। जैसा मैं हूँ, मैं पहले था, बचपन से था, लेकिन यहाँ आके तो मुझे बहुत ही लगाव हुआ, और जी कितने लोगों को मैंने फिर साथ लगाया। हम जो ग्राउंड होते थे उनमें पेड़ लगाते थे। जी जुलाई के महीने में जब बारिश होती थी, तो जी हमारे घर के सामने जो ग्राउंड था तो गवर्नमेंट का, जी। लेकिन हमने उनको बांट रखा था, अपने अपने पेड़ लगाते थे, उनमें पानी देते थे, उनको फिर हम देखते थे किसका अच्छा हुआ। तो सही। फूलों जी की जी बजाय ये भी मैं साथ के साथ है, ऐसे हमने एक सोसाइटी बनाई, और हमने पूरे 4-5 ग्राउंड हमने मेंटेन किए। हाँ, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब हमारे घरों में तो ऐसे लगता था भी हम जंगल में रहते हैं। तो अब अच्छा। बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे भी बड़े एंजॉय करते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, छलांग लगाते थे। अब वो माहौल रहा नहीं शहर में। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, अब तो वो माहौल नहीं रहा। बिल्कुल। बिल्कुल तो सही है। हमने प्लांट्स तो चलो लगाने ही चाहिए, उससे घर का माहौल तो ठीक होता ही है, जी, आपको सही है, बच्चों को खुशी तो मिलती है। बिल्कुल सही है। तो यही सवाल मैं हमारे दूसरे मेहमान से भी पूछना चाहूंगी, अर्पित जी एंड रश्मि जी, like when did you realize that you need to contribute something to the environment and indirectly also to the plants? बेसिकली वही था कि जो स्कूलिंग है वो दिल्ली में हुई थी, जी। एंड देन जो कंटिन्यूड स्कूलिंग थी दैट वाज इन अहमदाबाद। ओके। सो धीरे धीरे जो प्लेइंग ग्राउंड्स थे वो कंक्रीट जंगल बदलते जा रहे थे। जी सो इट वाज लाइक कि हम एक मतलब क्या कहेंगे कि सबको मोटिवेट करें, उससे पहले हम खुद एक जागरूक बने कि हम खुद क्या कर सकते हैं, जी एंड देन उसके बाद हम लोगों को बोल सकें कि हमने क्या चीज की है और किस तरीके से की है। देन ओनली वी कैन टेल पीपल कि भाई ऐसे ऐसे कर लो, छोटा छोटा पार्ट करो। मतलब जी, वी कैन नॉट स्टार्ट अ मूवमेंट एट द वेरी बिगनिंग, सही सो है। ईच वन कैन टेक इट फॉरवर्ड इंडिविजुअली। सो जी हम लोग की वो कोशिश थी। तो अब जैसे वही था कि मतलब जहाँ जहाँ हम लोग रहे तो वहाँ वहाँ मतलब गार्डनिंग का शुरू से ही था। मतलब डैड वाज इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सो काफी स्पेस होती थी। सो उसमें कम मॉम जो है काफी मैनेज करती थी उसमें विद द हेल्प ऑफ गार्डनर। तो धीरे धीरे करके नॉलेज बढ़ी कि क्या क्या चीज, और जब अपने घर में देखो तो और ज्यादा पता चलता है कितने एफर्ट्स डले और कितनी सुंदरता बढ़ी। सो बिल्कुल बिल्कुल। वो चीज से जो है थोड़ा सा मोटिवेशन हुआ कि हाँ होना चाहिए, और प्लांट्स भी होने चाहिए। अब जैसे हमने गिलोय भी लगा रखा है, सो अब कई बार जैसे ये कोरोना का पीक टाइम था तो लोगों को पता था कि यहाँ पे गिलोय है। और इनफैक्ट जैसे
मीठा नीम जो होता है उसमें वंस रश्मि वाज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो एक पर्सन वाज, मतलब वो घर की तरफ देखते हुए जा रहा था। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल कि वो आंटी वो मीठा नीम है, वो एक्चुअली मॉम ने मुझे भेजा था कि मीठा नीम लेके आना है। सो उनको कुछ खाना बनाना था एंड इट वाज लाइक कि हाँ बेटा ये लगा हुआ है, सो मैं तोड़ लूं थोड़ा सा। सो इट इज लाइक कि प्लांट्स आपके ही काम में आते हैं और दूसरों के काम आ जाए तो और बढ़िया। सो वो चीज एक मोटिवेशन था। जी जी जी, वेरी नाइस वेरी नाइस। और ये भी सुना है कि आपने अपना जो मकान बनाया है वो भी काफी चीजों का ख्याल रखते हुए आपने बनाया अपना मकान। जी जी, तो थोड़ा आप बेसिकली उसे विस्तार से समझाएंगे हमारी। बेसिकली व्हेन वी आर प्लानिंग, जो हमारा जब हम मैप बना रहे थे घर का, सो इट वाज लाइक कि तब तक नॉलेज नहीं था, बट व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल कि भाई क्या चीज है कैसे है, एंड फिर गूगल तो है ही कि भाई वेंटिलेशन कैसे अच्छा होता है और लाइट कैसे ज्यादा आती है। सो लोगों की बड़ी बड़ी विंडोज देखी थी, तो उसमें ये तो पता था कि बड़ी विंडो से लाइट आती है, बट वेंटिलेशन का जो है वो एक चीज देखी, तो उसमें पता चला कि जब आमने सामने आपका मतलब कि एक दरवाजा है और उसके एग्जैक्टली सामने वेंटिलेशन का है, तो 100% वेंटिलेशन होगा, थोड़ा सा साइड में है तो 60% होगा। तो इट्स लाइक मेरे जो डैड हैं उन्होंने हमसे पहले उन्होंने अपना घर का कंस्ट्रक्शन कराया था सेक्टर 114 में। So उनका घर was kind of an example for us. My dad is also a plant lover and being an engineer उनका काफी इंटरेस्ट रहा है कि वो हमेशा वेंटिलेशन एंड फुली लिटेड हमेशा ऐसा मुझे सजेस्ट करते थे, और उनका जो घर है वो भी काफी वेंटिलेटेड है। So that was one of the inspiration for us and he too really helped us. काफी गाइड किया था उन्होंने, एंड उसके बाद हम दोनों ने रिसर्च किया। ये जो घर है ये बेसिकली हम दोनों ने खुद मिलके डिजाइन किया है, और काइंड ऑफ लाइक आर्किटेक्ट से तो सिर्फ एक ऑफिशियल ठप्पा लगवाने वाली बात होती है, वो किया था कि गाइडलाइंस के लिए हम उनको फॉलो करें। बट यस, पहले लैंड लेने से लेकर उसको बनाने तक का दोनों का म्यूचुअल रहा है हमारा। तो उसमें वही था कि क्या क्या चीज ऐसी यूज की जाए जिससे कम से कम डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो और एयर भी जो है वो वेंटिलेटेड रहे। सो जैसे कि कंक्रीट ब्लॉक्स उस टाइम पे आए थे, सो हम लोग ने उसका यूज किया था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जो नॉर्मल ब्रिक्स होती हैं, तो ब्रिक्स में आपको काफी ज्यादा वाटर कंजम्पशन होता है। मतलब जब आपकी ब्रिक्स आई तो रोज उसको वाटर करना पड़ता है, देन आपका जब ब्रिक लगती है तो उसको मतलब तराई जो बोलते हैं वो करनी पड़ती है, सीमेंट का कंजम्पशन काफी होता है। तो कंक्रीट ब्लॉक्स में उसकी काफी ज्यादा बचत हो जाती है। एंड इनफैक्ट जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं वो हॉलो होते हैं, तो हॉलो होने की वजह से दे ट्रैप एयर, तो एयर ट्रैप करने से वो इंसुलेशन का काम करते हैं। तो बेसिकली जो भी टेम्परेचर आपका बाहर होगा, अगर सर्दियों में बाहर बहुत ठंडा है तो अंदर घर में थोड़ा वार्म रहेगा, और गर्मियों में जब गर्म बाहर बहुत ज्यादा है तो अंदर एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा। सो जो आपकी एनर्जी एफिशिएंसी होती है इन टर्म्स ऑफ एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनर को कम एनर्जी यूज करनी पड़ेगी आपके सेम रूम को ठंडा करने के लिए एज कंपेयर टू दी ब्रिक कंस्ट्रक्शन। सो वो काफी चीजें ध्यान में रख के फिर हम लोग ने डिजाइन किया था। I want to quote just one thing here. ये चीज सुनने में इनिशियली बहुत अच्छी लगी थी, बट प्रैक्टिकली पिछले 5 साल से, जब हम 6 साल से हम इस घर में रह रहे हैं, तो हमने ये पर्सनली फील किया है, हमारे पेरेंट्स ने, बच्चों ने भी हमें ये बोला है, सर्दी में भी घर का टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्रीज वार्मर होता है और गर्मियों में 5 डिग्रीज बेटर होता है, कूलर होता है। तो वो खुद बोलते हैं मम्मा बाहर इतनी गर्मी अंदर अच्छा लग रहा है, या बाहर ठंड है अंदर अच्छा लग रहा है। सो दे आर लाइक, हम दोनों एक दूसरे को देख के ना, देन वी से कि चलो दैट वाज अ गुड डिसीजन। करेक्ट, very nice. So I think at this point I'd like to tell my audience that it's time कि हम लोग इसके बारे में सोचे कि हम कैसे हमारे environment के प्रति भी थोड़ा जागरूक हो जाए. It's not just about talking big names or big projects and things like global warming or anything. एक अपने खुद से एक छोटा इनिशिएटिव जैसे आप लोगों ने लिया, अपना मकान बनवाते समय हम लोग काफी चीजों का ख्याल रख सकते हैं. जैसे the smallest thing that was taken into consideration कि अगर ईंट का मकान बनाएंगे तो पानी ज्यादा सोखता है,
तो यू कैन कंजर्व वाटर, क्योंकि इतने सारे स्टडीज में आपको पता चल रहा है कि 10 साल में 20 साल में फला सिटी में पानी की शॉर्टेज आ जाएगी। सो देयर सो मेनी वेज जिससे हम लोग अपना पानी भी कंजर्व कर सकते हैं उसको, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे और जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, उन लोगों को भी पानी की उतनी ही जरूरत है जितनी हम लोगों को भी है। So that was a wonderful point that you brought across, and I'm sure ये हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत ही educative रहेगा। And if any one of you have any queries, you can reach out to Parijay Genus. We can connect you guys with Mr. and Mrs. Arpit so that they can tell you exactly how to go about things. Yeah. So moving on to Kartar Singh जी, आपने हमें ये भी बताया कि आप जब स्कूल में थे तो आपको जबरदस्ती आपके टीचर वगैरह आप लोगों को पेड़ पौधे लगवाने में और इसमें सब आपको इन्वॉल्व करते थे। बिल्कुल ठीक है जी। जी। और अभी जितने भी आप पेड़ पौधे लगाते हैं अपने घर पे, ज्यादातर फूलों के आपने बताएं, और एक अच्छी बात आपने जो बोली थी कि वो आप उन पेड़ पौधों को कभी आप फेंकते नहीं है, तो उसके पीछे जो भी आपकी मंशा है, थोड़ा आप उसको विस्तार से बताएंगे हमें? एक्चुअली ऐसा है मैडम, जो हम फ्लावर लगाते हैं ना जी, वो 2 तरह से पैदा होते हैं। एक सीड से पैदा होता है और एक उसके हम उसको सेब रखें तो उसको टहनी काट के लगा सकते हैं। जी, ठीक है, उसमें थोड़ी मेहनत रहती है, बड़ा केयर करनी पड़ती है कि प्लांट्स गर्मी में खराब ना हो जाए जी, क्योंकि उसकी जो कटिंग लगाते हैं वो लगाते हैं जुलाई में जब बारिश आती है, तो जुलाई तक हमने उस प्लांट को सेफ रखना होता है। जी। तो ये तो हुआ कटिंग वाला। सीड वाला तो सीड बचा के भी रखता हूँ, बाई चांस हमारी कटिंग सेक्शन ना हो तो फिर मैं सीड लगा देता हूँ, उसे बीज से पैदा कर लेता हूँ। ज्यादा कोशिश रहती है अभी कटिंग से लगाऊं, वो फूल ज्यादा अच्छा होता है। जी, सही है। दोनों चीजों में सेफ रहता है। और प्लांट में सेफ रखता हूँ, बाकी को फिर मैं क्योंकि फेंकने ही पड़ते हैं, मजबूरी होती है क्योंकि इतना प्लांट्स रख नहीं सकते हम। जी 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 जी। आइडिया अभी मेरे को इतने प्लांट्स चाहिए तो उनको मैं सेव रख लेता हूँ। अच्छा, तो बाकी प्लांट्स आप करते क्या है उनका? बाकी प्लांट्स तो मैं जब ये उखाड़ता हूँ तो एक खड्डे में दबा देता हूँ। अच्छा अच्छा। फिर मेरा एक खाद भी तैयार हो जाता है, ताकि वो पेड़ में क्यारी में डाल देता हूँ। अरे वाह। तो नजदीक वाले जितने पेड़ हैं मेरे घर के इधर या उधर, यहाँ मैं जहाँ नए हाउस में आया यहाँ पेड़ कम है, और जहाँ हमने पुराने 40 साल से पेड़ लगाए थे जी, वो पेड़ बड़े हो गए थे, उनके पत्ते बहुत गिरते थे। फिर हम सभी ने मिलके एक बड़ा सारा खड्डा बना रखा था पूरे मोहल्ले ने, वो सारे पेड़ के पत्ते हम झाड़ू से उसमें डाल देते थे और ऊपर से ढक देते थे, बारिशों तक वो उसका खाद बन जाता था, फिर हम अपनी क्यारियों में डालते थे। तो साथ में आपकी कंपोस्टिंग भी हो जाती। हाँ जी, हाँ जी, हम उसी खाद को दोबारा यूज करते थे, तो जी, बहुत और सभी को फायदा होता था, प्लांट्स अच्छे होते थे। अब ये नए हाउस में आया हूँ, अभी यहाँ मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज में। अभी तो मैं केवल जो घर का वेस्ट होता है, जैसे सब्जी काटते हैं और जो ग्रीन वेस्ट जो है जी जी, उसको मैं खाद बनाता हूँ, उसको मैं सेव रखता हूँ और थोड़ा कटिंग करके उसको मैं एक डाल देता हूँ बर्तन में। मैंने बड़ी बड़ी बाल्टी रखी है 20-20 लीटर की, और थोड़ा मैं दही डाल देता हूँ और इस तरह वो फिर गल के वो तैयार हो जाता है, फिर दूसरी बाल्टी में। अच्छा, दही आप उसको गलने में थोड़ा जल्दी होने के लिए आप डालते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ताकि इसके जो बैक्टीरिया है उससे फर्मेंटेशन हो जाती है, ज्यादा पैदा हो। जी जी जी। तो उसमें फिर मैं ऐसे नीचे छेद कर देता हूँ और छेद वाला जो पानी निकलता भी है उसको भी यूज करता हूँ। उसके नीचे फिर मैं एक बर्तन रख देता हूँ, वो पानी जो निकलता है वेस्ट है उसमें फिर प्लांट्स में डालता हूँ, उससे प्लांट को ग्रोथ बड़ी होती है। वो अर्क है उसका ना। जी जी जी। फिर जो 2 महीने उसको छोड़ देता हूँ, नई बाल्टी लगा देता हूँ। मैंने ऐसे 3 बाल्टियां रखी हैं, रोटेशन चलती है उनकी। जी बिल्कुल। ऐसे मेरा खाद भी घर का बन जाता है, वो प्लांट्स भी खुश रहते हैं और मैं भी खुश रहता हूँ। फिर बिल्कुल सही है। तो आई थिंक ये दर्शकों को एक काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट, छोटी छोटी बातों का अगर हम लोग ख्याल रखें ना
तो उससे काफी बड़े रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। जैसे आपने, एक तो आप कंपोस्टिंग कर रहे हैं, जो भी बचा कुछ आए वो फेंक नहीं रहे, ऐसे वेस्ट भी नहीं हो रहे हैं। दूसरा, आप बाल्टी से जो पानी भी निकल रहा है, आप उसको वापस, उसमें जितनी भी खूबियां हैं उस पानी में, वो वापस आप प्लांट्स को ही आप वापस दे रहे हैं, पेड़ पौधों को दे रहे हैं। जो प्लांट्स को तो चाहिए, जितने जी उसको चाहिए हैं, जी आयरन से लेके कैल्शियम से लेके, वो हमारी जी सारी सब्जियों के वेस्ट में है। जी बिल्कुल। ठीक है ना, हर एक जी सब्जी में अलग अलग है, किसी में कैल्शियम ज्यादा है, किसी में आयरन ज्यादा है। जी तो हम इसको सबको मिक्स करके जब उसमें डालते हैं तो इस प्लांट को सारी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल। आम इंसान नहीं देता। तो वैसे इन अ वे आप रीयूज भी कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं, सेम वाटर। तो और घर की बहुत एक बढ़िया। फिर वो रौनक भी बढ़ जाती है ना। जब बिल्कुल। फूल ज्यादा लगे तो कोई भी निकलता है तो देखता है, अरे जी वाह कितने फूल है। जी तो फिर माली का बिल्कुल। एड्रेस पूछता है, माली का एड्रेस दो। मैं जी भी, माली तो हमारा गांव गया हुआ है, जी लेट आएगा। सही है, आप तो खुद ही अपने बागबान के मालिक हैं। हाँ, वो फिर हाँ थोड़ा मोहल्ले के हिसाब से जो बाहर का जी आदमी आता है उसको बताना पड़ता है, सही माली है। छुट्टी पर है जी इसलिए मैं कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें आपको शान महसूस करना चाहिए, इतने नहीं, प्यारे वो तो आपके। देखो, जो मुझे जी देखता है उनको तो पता ही है आप करते हैं। जी जो नया है आदमी कोई जो रुक जी के देखता है तो उसको मैं थोड़ा, नहीं तो फिर वो माली का एड्रेस पूछता है, फिर कहाँ से दूं मैं माली का एड्रेस। जी उससे बचने बिल्कुल। के लिए मैं ऐसे बोल देता हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो आइए एक झलक देखते हैं हम आपके घर की, आपके गार्डन की, और अर्पित एंड रश्मि जी का भी, जो भी उन्होंने मकान बनाया है उसकी झलक देख लेते हैं। I'd welcome my viewers to have a good session and enjoy this green space. ये मेरे घर का ग्राउंड फ्लोर है, जी और ये ग्राउंड फ्लोर के बहुत बाहर बढ़िया। एक टेरेस गार्डन बनाया छोटा। इसमें एक जी फाउंटेन लगाया, फाउंटेन बिल्कुल फ्री के पैसों का फाउंटेन है। ये भी जी जी अपने आप बनाया गया है। और अच्छा हाँ, ये मैंने जब पुराने घर से आया तो कूलर मैंने कबाड़ी को देना था। उसमें अच्छा। एक होता है छोटा हाँ ब्लैक कलर का, वो जी मैंने पंप उसका निकाल लिया था। और घर में था मेरे पास बच्चों को नहलाने के लिए, जब बच्चे छोटे होते थे, तो जी उसमें मैंने वो पंप लगा के थे, एक नोजल लगा के मैंने अपना ही तैयार किया था। वेरी नाइस। तो इसमें कोई लगता भी नहीं है, वही पानी सर्कल होता है, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं होता इससे। जी 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 और इससे पीछे जो दिखाया आपने, वो मेरा एक टेरेस है ऊपर, ये वाला। जी जी ये टेरेस मैंने आर्किटेक्चर से बड़ी बहस करके रखा बहुत है। खूबसूरत फूल लगाए आपने, इसके लिए बहुत मैंने अच्छे से। बहुत मेहनत की है, क्योंकि आर्किटेक्चर कहता था भी आपकी एलिवेशन खराब हो जाएगी, आगे सही। टेरेस नहीं छोड़ना आपने। मेरे को पता था कि मैंने प्लांट्स लगाने हैं, जी मुझे टेरेस चाहिए। तो इस चक्कर में हमारी काफी रहती थी आर्किटेक्चर के साथ। फिर मैंने प्लांट्स के लिए वो टेरेस छुड़वाया। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। प्लांट्स का आपको देख के पता लग रहा है, ये जो प्लांट्स हैं ये कम जी से कम 8-9 साल पुराने प्लांट्स हैं शायद। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, ये पिछली तो काफी घर के। मेहनत लगी होगी आपकी इनको मेंटेन करने में, खास करके जब गर्मियों के दिन में इनको ये जो मेरे तरोताजा प्लांट रखने नहीं में। ऐसा है मैडम, इनके प्लांट्स के मैं जो कुछ प्लांट्स मैंने पहले बताया था, एक कलर के 5 प्लांट्स मैं रख लेता हूँ, जिसको बड़ा सेव करके रखता हूँ, बड़े धूल से हाँ बचा के रखता हूँ। जी जी जी। फिर उनकी कटिंग लगाता हूँ जुलाई अच्छा लास्ट में, बारिश आने के बाद। अच्छा, तो वो सही वक्त होता है प्रोपगेशन के लिए। इसके लिए सही बात, ये मेरे पुराने हाउस का है, ये भी जी 8-10 साल पुरानी फोटो होगी। और माशाल्लाह। गवर्नमेंट हाउस था, उसमें थोड़ा ऐसा ही ग्राउंड रहता था कच्चा, तो मैंने उसको ऐसा मेंटेन कर रखा था भाई, देखते रहो। और उधर मैंने एक साइड में वो देखो टोकरी दिख रही है ऊपर ग्रीन के ऊपर, वो प्लास्टिक की मैंने वो रखी हुई है। और ये वाली, यस, जी 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 ये लोग देखते रहते थे ये हो क्या गया है, क्योंकि ये एक हैज, हम हैज बोलते हैं इसको। और हैज के ऊपर वजन नहीं रहता है, क्योंकि वो अच्छा
ग्रीन होती है, उसके ऊपर वजन रखो तो गिर जाएगा। तो इनको मैंने ऐसे ढंग से लगाया था, लोग ना अपने मालियों से लड़ते रहते थे। रीजन मैंने इसको सपोर्ट दे रखी है अंदर से। अच्छा। अपने जाके मैंने एक सपोर्ट बनाई जिसके ऊपर इसको रखा और इसके अंदर लगाई। लगाने के बाद उसके ऊपर रख दिया। लोग कहते हैं ये कैसे रखी, कैसे है, दिखती थी। जमीन में गाड़ रखी थी। तो ऐसे मेरे को एक फिर ज्यादा गमले रखने की जगह भी मिल गई और लोगों को भी अच्छी लग रही थी, मुझे तो लगनी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ये काफी पुराना मेरा गार्डन है। तो ये यहाँ पर एक थोड़ा ड्रॉबैक था, यहाँ घास नहीं होता था। मैंने बड़ी ट्राई की, ये जितने भी प्लांट्स रखे इनके नीचे ग्रीन घास नहीं है। अच्छा। हाँ, एक पेड़ था, उसकी जड़ इतनी ज्यादा थी वो घास को नहीं होने देता था। अच्छा। तो अरे छां रहती थी, घास के लिए थोड़ी धूप भी चाहिए होती है। जी जी। मेरे को यहाँ प्लांट्स लगाने में जितना भी है, ये जो प्लांट्स हैं ये वाले, और यहाँ प्लांट्स होते नहीं थे उस पेड़ करके, तो मैं क्या करता था, प्लांट्स कहीं और तैयार करके फिर बाद में लगा देता था तैयार होने के बाद जी। तो फिर वो गार्डन पूरा भर जाता था जी। बड़ी मेहनत करता था, अब भी कर रहा हूँ। माशाल्लाह। नहीं, मेहनत किया तभी तो इतने सारे रंग उभर के आए हैं ना। हाँ, देखने से पता लग रहा है। कोई भी आता था तो पहले खड़ा होके जाता था, आप ये कैसे करते हो, ये करते हो। तो हर एक जगह पर ये देखो, यहाँ मैंने तीन तीन लाइन लगा रखी है। वो लाइन खत्म होगी तो दूसरी तैयार हो जाएगी जब तक। जी। तो ये टाइम इनका है, ड्यूरेशन अलग अलग है। अब ये व्हाइट वाले फूल खत्म होंगे तो ये जो गेंदा है, मेरीगोल्ड है, ये तैयार हो जाएगा फिर। अच्छा, तो ये रोटेशनल है, मतलब हर फूल का एक अलग अलग सीजन होता है। एक गोरी में गेंदा एक ऐसा पौधा है जो साल में 3-4 फसल दे देता है। ओह, बाकी ये जो व्हाइट फूल वाली है, इसको गुलदोती बोलते हैं हम, ये 6 महीने की फसल है। अच्छा, हम जुलाई में सालाना 2 बार। हाँ, 6 महीने इसका 6 महीने जुलाई में लगाते हैं और इसका फूल आता है नवंबर। अच्छा। अब दिसंबर जनवरी 15-20 तक खत्म हो जाएगा। अच्छा। ये पहले मैंने गेंदा और दूसरी चीजें लगा दी हैं क्यारी में, ताकि वो खत्म हो तो उसका फूल शुरू हो जाए जी, ताकि वो क्यारी खाली ना रहे। तो फिर जाएगा मेरा अप्रैल मई तक। फिर 2 महीने में जमीन को खाली रखता हूं ताकि उसमें थोड़ी पावर बनी रहे, सारी चीजें उसको मिल जाएं जो चाहिए। अगर हम लगातार भी एक जमीन में कोई चीज लेते रहते हैं तो उसकी पावर कम हो जाती है, उसको थोड़ी धूप भी चाहिए जी। तो 1 महीने के लिए मैं जमीन में कुछ नहीं लगाता। फिर जो हमारे दूसरे प्लांट्स हैं ग्रीन रहते हैं जो सारा साल, फिर मैं उनकी तरफ गमले बाहर रख देता हूँ। तो आप इस तरह से वो सारे पेड़ पौधे आप रोटेट करते रहते हैं साल में? बिल्कुल। जी, रोटेशन इनको ऐसे चलाता रहता हूँ ताकि खाली ना रहे कभी भी। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि हर तो थोड़ी बहुत जानकारी भी होनी जरूरी है ऐसा मेरा तो और जी तो फॉर एनी मेरा ऐसा है कि मैं बचपन से जब आया तो वहां तो इतना नॉलेज नहीं था। जब यहाँ मैं चंडीगढ़ आया तो यहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। अच्छा, माली भी है जी तो सजाने के लिए, लेकिन उनको नॉलेज इतना नहीं होता था जी। फिर मैंने वहां पर एक थोड़ा मैंने बच्चों के मिलके माली को मिलके को बनाया, ग्रुप बनाया भी। अच्छा। किसकी क्यारी सबसे अच्छी है? अच्छा, तो ऐसे कंपटीशन कराता था मैं, फिर जेब से वो बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, जेब से इनाम दे देता था बच्चों को। माली को भी कभी वो उसके कपड़े दे दिए ड्रेस के लिए जी। खाना तो होता था एक सजाने का, मेरा भी शौक पूरा होता था और बच्चों को भी फिर लगन हो जाती थी। ऐसे ही फिर मैंने स्कूल में कम से कम 500 पेड़ लगाए। हमारा स्कूल बहुत बड़ा था और हर बच्चे को एक पेड़ अलाट किया और वो बच्चा, हेलो जी जी बताइए।
बच्चों को फिर एक एक पेड़ अलाट किए हमने जी। तो एक पेड़ वो देखभाल वो करते थे, जो कमी रह जाती थी तो हम पूरी करते थे। जी। और इस तरह फिर स्कूल की चारों बाउंड्री के तरफ पेड़ ही पेड़ थे हमारे, स्कूल नहीं दिखता था, पेड़ ही दिखते थे। जी। तो ऐसे फिर शौक और बढ़ता गया। अपना घर तो जी। मेरा अच्छा रहता था, हमारा स्कूल भी बहुत अच्छा रहता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत खूब करतार सिंह जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ अपनी शेयर की। उम्मीद रखती हूँ कि हमारे दर्शक आपसे काफी कुछ सीखे होंगे। तो अभी बात करते हैं रश्मि और अर्पित जी की। कैन यू एक्सप्लेन अबाउट आपका जो प्रोजेक्ट था, आपका कंस्ट्रक्शन का, थोड़ा आप उसके बारे में बताएंगे आप दोनों? Let me just share it. अब इसमें जो है बेसिकली ये वाला जो साइड है, मतलब वाइल चूजिंग दी प्लॉट, तो उसमें यही था कि मेन चीज है कि एक तो कॉर्नर प्लॉट और वेस्ट फेसिंग, ताकि जो विंटर सन है वो पूरी टाइम आना चाहिए, ताकि वार्मथ घर में बनी रहे। एंड देन जो ये कर्सर आपको दिख रहा है, इसमें ये बेसिकली पूरी इस साइड पे बड़ी विंडोज रखी हुई हैं कि पूरा जो लाइट है जितनी देर तक सन रहेगा यहाँ पे रहेगा, चाहे फ्रंट में आ जाएगा सनसेट के टाइम पे तो पूरा लाइट रहेगा। तो ये डिजाइन इस तरीके से किया था बड़ी विंडोज का। और ये जो कंक्रीट ब्लॉक की मैं बात कर रहा था, ये कंक्रीट ब्लॉक है, तो ये इट हैज 4 हॉलो स्पेसेस। एंड जो एक ब्लॉक का साइज होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 ब्रिक्स के बराबर होता है ये। तो अब आप इसमें अगर इसका टेक्सचर देखेंगे तो ये कंक्रीट का है। सो जब ये जॉइन होता है तो इसमें जो सीमेंट है उसका बहुत मिनिमम यूज होता है, इट इज जस्ट टू जॉइन इट। तो जो सीमेंट की आपकी कॉस्ट बचती है, अगर आप देखें तो इसमें बहुत मतलब फाइन फिनिश आती है, सीमेंट की कॉस्ट भी बचती है एंड जो लेबर कॉस्ट है वो भी बचती है। एंड स्पेस सेविंग भी है, बिकॉज ईंट जो है 2 ईंट मिला के आपका 4.5 4.5 इंच से आपका 9 इंच का होता है, एक ब्लॉक 8 इंच का होता है, तो 1 इंच का स्पेस भी बच जाता है। 1 इंच का स्पेस भी बच जाता है। तो टेक्निकल, और जब ईंट ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन होता है तो बेसिकली वो थोड़ा सा एक साइड पे फिनिश्ड होता है, एक साइड पे अनइवन होता है। तो जिस साइड पे अनइवन होता है उधर सीमेंट बहुत ज्यादा लगता है। तो ये ब्लॉक जो है वो दोनों साइड से काफी अच्छी फिनिश होती है, तो जो सीमेंट की यूसेज होता है वो कम हो जाता है। ओके। एंड दिस इज दी ओपन टू स्काई जो हम लोग के घर में, सो यहाँ से जो पूरा सनलाइट का है ये पूरा ग्राउंड फ्लोर तक जाती है सनलाइट। सो ये घर के एकदम सेंटर में है। सो और जो ये साइड है इधर सारी विंडोज हैं एंड इस साइड पे ये शेयर्ड वॉल है, कॉमन वॉल है। So, इधर हम विंडोज नहीं निकाल सकते थे, सो इसलिए इस साइड पे हमने ये एरिया दिया। इट इज अप्रोक्सीमेटली 8 by 10 फीट। सो उससे जो है काफी अच्छा जो लाइट है वो दिन भर रहती है जब तक सन रहता है, एंड उसके बाद देन वी नीड टू स्विच ऑन द लाइट्स। सो उससे काफी जो नीचे जमीन पर देयर इज अ स्क्वायर एरिया that is the skylight that takes your light to the ground floor. Exactly. Okay. So basically a net. ये बेसिकली जो है ये एरिया जो बना रखा है ये वेंटिलेशन के लिए है कि जो गर्म हवा आएगी इट विल राइज थ्रू द ग्राउंड फ्लोर, इट विल कम टू फर्स्ट फ्लोर एंड देन इट विल गो टू सेकंड फ्लोर। एंड जो यहाँ पे ऊपर एक है हमने मॉस्किटो नेट लगा रखा है, उसके थ्रू जो है वो इट विल एग्जिट द हाउस। तो ये विंडो जो है और इसके एग्जैक्टली सामने मेन डोर है। तो जैसे ही ये विंडो खुलेगी और दरवाजा खुलेगा, व्हेन द एयर विल पास, तो जितनी गर्म हवा है साइंटिफिक को ऊपर राइज करती है। सो वो ऊपर राइज करेगी और वो ओपन टू स्काई से बाहर निकल जाएगी। और आप जैसे विंटर्स हैं, विंटर्स में आप डोर और विंडो बंद रखेंगे तो गर्म हवा घर के अंदर ही रहेगी, वो एग्जिट नहीं करेगी। सो वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और समर्स में गर्म हवा बाहर निकल जाएगी तो वेंटिलेशन प्रॉपर होके घर का पूरा जो टेम्परेचर है इट विल बी गुड इनफ। एंड दीज आर द विंडोज ऑफ 2 रूम्स की पूरी बड़ी बड़ी है, तो दोनों साइड पे जितनी भी लाइट आ सकती है
वो आ सकती है। मतलब आप ये देखिए 4:15 बजे आज का, हाँ आज का 4:15 का है, मतलब 4:30 का। सो इट इज लाइक कि काफी लाइट उस टाइम पे भी है कि आपको लाइट जलाने की कहीं जरूरत नहीं है। You can see the sunlight from this area. ये आज का ही फोटोग्राफ खींचा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों रूम में कितना अच्छा लाइट है। जी जी बिल्कुल। एंड दीज आर द सोलर पैनल्स, जिससे काफी मतलब जो एक ऐप है जो इसके साथ कनेक्टेड है, उसमें मतलब जो अभी तक का देखा है उसमें मतलब अप्रोक्सीमेटली मतलब ऐप के हिसाब से, आई एम नॉट रियली श्योर कि कितना करेक्ट है वो, 330 प्लस ट्रीज वी हैव सेव्ड, 2500 kg ऑफ CO2 वी हैव सेव्ड। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी उतनी यूज की होती, सो उतना पोल्यूशन क्रिएट हुआ होता, उतने ट्रीज कट हुए होते। सो इससे लगाने से एक वो एडवांटेज है। जी। एंड दिस इज your entire house is run on solar energy? No, actually in Punjab we have net metering, so it is like कि जितना हम प्रोड्यूस करते हैं हम we give it back to the grid, and जितना कंज्यूम करते हैं वो प्लस माइनस रहता है वो। So it depends on कि कितना जनरेशन हुआ और हमने कितना यूज किया। So sometimes जब विंटर्स होता है तो विंटर्स में थोड़ा कम जनरेशन होता है बिकॉज ऑफ सन का डायरेक्शन, एंड कभी होता है कभी फॉग होता है, कम होती है, सही है, या कम जनरेट होता है। अदरवाइज समर्स में इट इज लाइक गुड। तो वो प्लस माइनस होके इट इज लाइक मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ है वी जस्ट पेड रेंट, वी डिडंट हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब वो बस मीटर का जो रेंट था वी हैड टू पे दैट। सो इट इज नॉट डायरेक्टली दैट वी आर यूजिंग द electricity generated, it is through net metering. Okay. Yeah, and ये थोड़ी गार्डन स्पेस है जो हम लोग ने बना रखी है, एंड ऑल दीज स्टोन्स जो है, ये जो बोल्ड हैं जो इतने सारे, ये एट द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन था उस टाइम पे जो सैंड में से निकलते हैं, सो वी हैव यूज्ड देम कि मतलब लोग ब्यूटिफिकेशन के लिए जाके मार्केट में खरीद के लाते हैं। ये अपने किड्स को काम पे लगाया कि भाई जाके ये स्टोन्स कलेक्ट करो और साइड में रखो, एंड देन वी विल यूज इट समवेयर। सो वो करके फिर वी मेड अ कॉर्नर एंड वी प्लेस्ड द पॉट्स देयर कि थोड़ा एक लुक भी आ जाता है, एंड अदरवाइज इसको डिस्पोज करें, लैंडफिल में डालें, मतलब वो इट्स सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर। Absolutely. I think I got the point. Yeah. ये एक किचन गार्डन है, और इसमें मतलब ये है मतलब इट्स लाइक रश्मि का एक है कि जहाँ पे भी कुछ भी फ्रूट खाया तो ये फ्रूट के जो सीड्स हैं वो फेंकने नहीं है, उसको हम कहीं पे भी डाल देंगे। I actually just keep trying honestly, but जैसे अभी करतार जी ने बताया, I don't possess that much of knowledge। बचपन में जो छोटा मोटा स्कूल में सिखाया जाता है बस उतना सा ही समझ में आया था, एंड यस ऑफ कोर्स थोड़ा अभी ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सो व्हाट डू आई डू इज लाइक अपने घर में सबको बोल रखा है, बच्चों को भी बड़ों को भी, कोई कुछ खाता है सीड्स फेंकना नहीं, इकट्ठा करके मुझे दे देना, आई सो इट। सो कोइंसिडेंटली 2-3 बार ऐसा हुआ कि जो मैंने लगाया वो थैंकफुली फ्रूट जो है वो राइज कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है देख के। ये बेसिकली जो है ये आड़ू मैंने लगाया था, इसके साथ में छोटा सा है वो हल्दी लगाया था, एक हमारे बैकयार्ड में जामुन लगाया है, वैसे उसके अलावा अमरूद का पेड़ है, नींबू का पेड़ है, ये मिंट आप देख सकते हैं, आम की गुठली जो है वो लगाई थी, उससे आम का पेड़ निकला है। देन पपीते के भी बीज डाले थे तो छोटा सा पपीते का भी निकल रहा है पौधा, ये हमने बैगन लगा रखे हैं। तो कोशिश ये रहती है जितनी भी हमारी सीजनल वेजीज हैं वो हम अपने छोटे से गार्डन से निकाल लें, मेथी, पालक, मूली, तो ये सब चीजें हम कोशिश करते हैं कि नॉन पेस्टिसाइड वाली घर पे ही, अगर मतलब एक छोटे से घर में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, 2 लौकी भी निकल आती है वो भी बहुत होती है, 2 बैंगन से भी अच्छी सब्जी बन जाती है, तो वो छोटा छोटा हम अपने किचन गार्डन से ही निकाल लेते हैं। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। ये हमारा बैकयार्ड है जहाँ जैसे मैंने बताया कि जामुन का पेड़ है, और इसके अलावा वही एयर प्योरिफिकेशन एंड थोड़ा सा हमारा वास्तु के हिसाब से भी जैसे कहते हैं ये 7 हमने प्लांट्स लगाए हैं जिसमें पीपल, बरगद, बेल, ये सब प्लांट्स आते हैं जी, और तुलसी बहुत है हमारे यहाँ पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो काफी समय से ऐसे ही खाली था, थोड़ा डंप यार्ड बन गया था, सब लोग कूड़ा फेंक जाते थे, तो उसे क्लीन करा के, मतलब दिस वाज द एग्जिस्टिंग सिनेरियो, तो हमने वो थोड़ा क्लीन करवा के यहाँ पे मिट्टी डलवाई है
और अब ये क्यारियां बनाई हैं तो हम प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे भी एक छोटा सा हम किचन गार्डन बनाएंगे अभी। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ बोथ करतार सिंह जी का जो भी गार्डन है, इतना खूबसूरत, इतने फूलों का, आई मीन बहुत खूबसूरत था, इतने रंग बिरंगी फूलों का, एंड आप लोगों का जो एनवायरमेंटल यू नो द कॉन्सेप्ट जो यू हैव टू गिव बैक टू द एनवायरमेंट, उसका भी बखूबी मिश्रण है। तो आई डोंट नो, आई एम ओवरवेल्म्ड टुडे विद दिस सेशन ऑफ परिचय टुडे। दोनों चीजों का एक साथ आना, इट इज समथिंग वेरी नाइस। क्योंकि अक्सर लोग बात करते हैं पेड़ पौधे लगाना है, ये करना है, वो करना है, उससे आगे क्या, वो भी तो बेहद जरूरी है ना। इवन हमारे वातावरण को भी हम लोगों को उसकी भी देखभाल करनी है। हमारे घरों के जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऑफिसों के, बंगलों के, जो भी है, उसमें हम लोग कितने पेड़ पौधे नहीं हम नष्ट कर देते हैं, ऐसे ही डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली तो हम लोग कैसे भी कर ही सकते हैं। तो बहुत खुशी हुई ये सब जान के आप लोगों से। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट if any of our audience have any questions for our guests. I can see Ajay, Radhika ji and Nidhi ji, आप लोगों को कोई सवाल करनी है हमारे मेहमानों से, उनके जो इतने प्यारे कॉन्सेप्ट्स जो एक्सप्लेन किए हैं उन्होंने, उनके मुताल्लिक, if you can please unmute yourselves or put it in the chat box. We can put it across to our guests. Nidhi ji? Okay. I guess आप लोगों के एक्सप्लेनेशन और जो भी आपने विस्तार पूर्वक बताया है वो काफी है उनकी जानकारी के लिए। So I would also like to tell our guests out there who are viewing us live on Facebook that if at all आपकी कोई भी सवाल हो, कोई queries हो, you need to ask our guests about how they conserve, the environment through their small little acts of saving electricity, or having insulated homes to maintain temperatures inside, or even conserving water while construction with your concrete blocks rather than with the brick blocks. So I think for all of that you can reach out to us at Parijay, और अगर आपको करतार सिंह जी का भी आपको कोई जानकारी चाहिए उनसे, तो आप परिजय को कांटेक्ट कीजिए। We'll be more than glad to help you. So जी बताइए। करतार जी के बारे में मैं एक और चीज बोलूंगा कि अगर किसी को मेहनत करनी सीखनी है ना, तो वो अंकल से सीखे। एब्सोल्युटली। मतलब हमने जितना उनको प्लांट्स की केयर करते हुए देखा है, मतलब सामने से जो हमने देखा है, मतलब एक छोटे, दिन रात नहीं देखते हैं वो सिर्फ अपने प्लांट्स देखते हैं। थैंक यू आरपी जी, थैंक यू। वेलकम अंकल। लेकिन जो चीज है, मतलब जो मेहनत है, क्योंकि पौधा जो है बच्चे से कम नहीं होता है। बिल्कुल जितनी नर्चरिंग और केयर देंगे उतना ही ज्यादा फूल होता है। मतलब एक्चुअली क्या है कि हम लोग का जो आपने गार्डन देखा उसमें कम फूल इसलिए क्योंकि अंकल के वहां पे इतने हैं कि हमारी बालकनी से इतना अच्छा दिखता है। तो टेक्निकली हम अपने गार्डन को नहीं देख सकते, लेकिन उनके गार्डन में देख के हम सारे मजे ले लेते हैं। हम फूल वहां देख के खुश होते हैं, सब्जियां हम उगा लेते हैं। ये तो वही हुआ ना, the grass is greener on the other side of the fence. Absolutely, absolutely. अभी साइड तैयार होएगी ना, उसमें फ्लावर ही लगेंगे, फिक्र ना करो। बिल्कुल बिल्कुल जी। Very nice. Actually, it's a delight to watch his garden, and जिस तरह से ये केयर करते हैं, it's really inspiring. I mean, इनको देख देख के हमें इंस्पिरेशन होता है कि हाँ, ये चीज हम भी कर सकते हैं, कि हमें भी करना चाहिए। वो एक्चुअली जैसे कहते हैं कि plants need to communicate with them. So वो love and care जो चाहिए होती है, ये बिल्कुल फादर की तरह केयर करते हैं अपने प्लांट्स का। जी बिल्कुल। आई थिंक पेड़ पौधे भी तो ऑब्वियसली उन लोगों में भी इमोशंस होते हैं, ये तो रिसर्च ने प्रूव किया है। तो जितना हम लोग उनको प्यार देते हैं उतना ही वो फलते फूलते हैं। जी। तो आई थिंक वो करतार जी की देखभाली में नजर आता है कि वो अपने पेड़ पौधों को बहुत प्यार से और बहुत दुलार से आप उनको देखभाल करते हैं, तो तभी तो इतने अच्छे खूबसूरत लग रहे थे आपके फूल। Exactly. Absolutely. I think यहाँ पे we've had मैं छोटी सी ऐड करना चाहती हूँ।
इट इज अबाउट तुलसी बिकॉज बहुत से लोगों ने मुझे पूछा भी है और बहुत से लोगों के साथ ये हुआ भी है कि तुलसी का पौधा जो है सर्दी में बहुत बार वो झड़ जाता है या मुरझा जाता है और कई बार मर जाता है। तो एक छोटा सा टिप जो मैंने खुद अपनी मदर इन लॉ से सीखा है वो ये रहता है कि जो तुलसी का पौधा है सर्दी में उसको ना एक छोटी सी दुपट्टा चुन्नी जो होती है हमारी, अगर हम उससे कवर कर दें तो उसका मॉइस्चर रिटेन रहता है, वो बच सकता है। Very So that's one thing which I wanted to share. right. We'll definitely put it up even in our post also. ये आपकी बहुत खूब, क्योंकि तुलसी तो वैसे भी पूजी जाती है और इतनी उसकी प्रति निष्ठा होती है and all that. So I think it's a very good tip that you gave कि उसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करें और उसको कैसे तरोताजा रखें। एक्चुअली मैडम तुलसी के बारे में थोड़ा मैं ऐड कर सकता हूँ। बिल्कुल कीजिए। तुलसी एक ऐसा प्लांट है जो बहुत नाजुक है जी, और हम पूजा में भी यूज करते हैं जी, और कई तरह की चाय में और कई जगह बड़ा काम आता है ना। जी, जी, लेकिन सर्दियों में जैसे मैडम ने बताया कि तुलसी का बूटा खराब हो जाता है, एवरेज खराब होता है, जो केयर नहीं रखे। उसकी केयर की एक दो चीजें हो रहा है, अगर उसको हम अपनाएं तो बिल्कुल नहीं खराब होगा जी। ऐसे मैडम ने बताया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक बीज आते हैं तुलसी के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। अगर हम तुलसी के बीज ऊपर से तोड़ते रहे, ना आने दें, अच्छा, प्लांट्स बिल्कुल हरा रहता है। अच्छा, हाँ, अब मेरा प्लांट्स देखो तुलसी का मेरे गार्डन में है और कितना बड़ा है। उसके पत्ते देखो आप, अगर वही गार्डन में मैं दिखाना चाहूँ तो उसका पत्ता मैं दिखाऊंगा आपको, आप कहोगे बिल्कुल ग्रीन है इस ठंड के मौसम में भी। जबकि मैं अभी कपड़ा कभी भूल जाता हूँ, ढकता हूँ, मैं भी ढकता हूँ और कभी गलती से रह भी जाता है, लेकिन वो प्लांट बिल्कुल ग्रीन है जी। अच्छा, उसको बेसिकली मंजरी भी कहा जाता है। मेरे मदर टाइम टू टाइम उसे तोड़ते रहते हैं। हाँ, अच्छा, उससे क्या होता है, वो तोड़े तो अगर चाय में डालें तो और ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा, ये एक और टिप भी हो गई कि उसको फेंकना मत, तो उसको भी यूज कर लेना। हाँ, और उससे अगर हम बीज नहीं बढ़ने देते तो प्लांट्स की लाइफ बढ़ जाती है। जी, एक प्लांट्स की बीज बढ़ने के बाद उसकी लाइफ कम हो जाती है जी। तो उसके ऊपर से बीज तोड़ते रहो तो प्लांट सारा रहेगा हमेशा। जब अगर आप ये नोटिस करेंगे, अगर जंगल में भी कहीं तुलसी होती है तो उसके वो मल्टीप्लाई होता है। उसका रीजन यही है कि हवा से भी जब वो सूख जाते हैं, मंजरी जब सूख जाती है तो वो झड़ जाती है, वो आसपास फैल जाती है और वहां पे वो अपने आप ऑटोमेटिकली नई तुलसी आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। So that is the basic दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, प्रोपगेशन हो जाता है वो। अच्छा, तुलसी की एक और मैं बताऊं, टहनी बड़ी जल्दी लगती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, ये तो कई बार देखा है ना, हम एक दूसरे के घरों से हम तुलसी की टहनी लेके अपने घरों में लगा देते हैं। खासकर जुलाई महीने में बहुत जल्दी जड़ पकड़ जाती है। जी, मानसून में। सही है। बाकी प्रैक्टिकल करते रहते हैं, किसी को कोई प्रैक्टिकल ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये भी एक रिसर्च है, करते रहो, कुछ ना कुछ मिलेगा। तो तभी जी करते रहेंगे, तभी तो और भी सीख पाएंगे और अपने एक्सपेरिमेंट में और भी जानकारी ले पाएंगे, है ना। बिल्कुल, ऐसे तो फिर एक दूसरे से ज्ञान ऐसे तो मिलता है। जी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। मैं एंड दिस इज सीखूंगा, वन कुछ दूसरा प्लेटफॉर्म सीखेगा। जहां हम लोग ज्ञान बांटना चाहते हैं लोगों को। जो भी हमारे मेहमान है, अपना अपना जो भी उनका जो इट सीम्स उनका नेटवर्क शायद चला गया है। Let's wait for her. Yeah, she's back again. I'm sorry. There was a bit of a problem. Yes. So now that I think we've come to the end of the show,
we don't have any questions from the guests, but I would definitely love to thank you all. आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद. इतनी प्यारी बातें बताई हैं, इतनी लवली कॉन्सेप्ट्स आपने शेयर की हैं कि शायद कोई लोग उसके बारे में सोचते ही ना हो. खास करके जब मकान बनवाते हैं तो सब लोगों के दिमाग में यही होता है कि हमको सबसे बेस्ट एंड बेस्ट होता है. जो लोग करते हैं सब लोग अंधाधुन उसी के पीछे लग जाते हैं, कुछ अलग हट के नहीं सोचते कि इससे और क्या हो सकता है, और बेहतर क्या हो सकता है. और जैसे करतार सर ने कहा है कि मेहनत करो और खुद करते जाओ और उससे सीखते जाओ. शायद जिंदगी की हर कोई चीज में यही कर सकते हैं हम लोग. जी बिल्कुल सही. सारी चीजों में आप करते जाएंगे, अच्छा करते जाएंगे तो और सीखते जाएंगे, गलतियां करेंगे तो उससे और भी सीख मिलेगी. सो थैंक यू ऑल सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का आने के लिए और इतनी प्यारी बातें हम लोगों के साथ शेयर करने के लिए. एंड आई थिंक हमारी जनता भी बहुत खुश होगी आज. तो आपका समय निकाल के हम लोगों के साथ आने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you so much for having us. Thank you all to our guests and to our viewers who have joined us on Zoom as well as who are on Facebook Live with us. So see you again in the alternate Saturday. That's the third Saturday with another episode of Greener Happier Tomorrow. So this is all of us from Parijay signing off from now. So have a great evening and a great new year 2022. सब लोगों को नए साल की शुभकामनाएं. Happy New Year. Thank you. Thank you also.